Hello, good afternoon, students. In earlier class, we have studied about the direct sources and indirect sources and earthquakes, earthquake waves, and we also studied about the structure of Earth, in which we studied what is crust, what is mantle, what is core. In today's class, we are going to study volcano and volcanic landforms, seismic discontinuity, and continental drift. Uh, So let's start with a quick revision. Okay, let's start with a quick revision so that you guys able to connect yourself with this class. Okay, in earlier class we have studied about what are the direct sources, which tells about the structure of Earth. So we discussed in earlier class in direct sources surface rocks or rocks we get from the mining areas. These are the direct sources, and whatever the matters erupt on volcanic eruption. Volcanic eruption forms another source of obtaining direct information, and there are some indirect sources. In indirect sources, we had studied analysis of property of matter. Another source of information are meteors, and other indirect sources include gravitation, magnetic field, seismic activity. These are the sources which tells us about the crust, mantle, and core part of the Earth. What are the structure of Earth? Now, we also discussed in earlier class. We also discussed what are earthquakes. Earthquake, in simple word, we can say that earthquake is basically shaking of Earth. Okay. We also discussed what are earthquake waves. Uh, there are two types of waves, that is body wave and surface wave. In body waves, we have studied about primary waves and secondary waves. What primary waves passes through the all matters like gaseous, liquid, and solid, and S waves is basically secondary wave. And important fact about S wave is it can only pass through the solid matter. It cannot pass through the liquid and gaseous matter. And the second one is the surface wave, are the last. Second wave, the secondary wave are the last to report on the seismograph. Seismograph is basically what which reads the which reads the आप कह सकते हैं कि ये रीड क्या करता है, ये वेव्स को रीड करता है, जो फोकस होता है जहाँ से जनरेट होता है, ये अर्थक्वेक वेव जनरेट होता है फोकस से, तो वहां से जनरेट होकर फिर आपका ये सरफेस तक पहुंचता है। तो सरफेस पर पहुंचने के बाद जब ये वेव जनरेट होना डिजास्टरस फॉर्म में आ जाता है, तो उसको मैं सरफेस वेव कह रहा हूँ, है ना। हम लोगों ने और भी बहुत कुछ पढ़ा था, क्रस्ट के बारे में पढ़ा था। तो क्रस्ट इज बेसिकली outermost solid part of the earth. Okay. The thickness of crust varies under the ocean and continental areas. Oceanic crust is thinner as compared to the continental crust. हम लोगों ने ये भी देखा था कि ओशन का जो क्रस्ट होता है वो सिर्फ 5, थिकनेस जो होता है उसका सिर्फ 5 किलोमीटर के आसपास होता है। और ये कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट होता है, ये लगभग इसका जो एवरेज थिकनेस होता है वो 30 किलोमीटर के आसपास होता है। और हिमालयाज वाले रीजन में अगर हम जाएंगे तो वहां पर कितना हो जाता है थिकनेस, ये 70 किलोमीटर के आसपास ये थिकनेस हो जाता है। और इसी क्रस्ट के सर नीचे मेंटल पाया जाता था। हाँ जी, हाँ जी। सर ये ठीक से दिख नहीं रहा है कंटेंट जो लिखा हुआ है। बहुत छोटा छोटा है। अब हम लोग अभी अर्लियर क्लास के बारे में जो डिस्कस किया था उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बताऊंगा, आप इसको जो है बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। मेंटल हम लोगों ने देखा था, तो मेंटल इज द सेकंड मोस्ट लेयर, है ना। उसके बाद कोर देखा था हम लोगों ने कि कोर क्या होता है। मेंटल के दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। कोर के भी दो पार्ट होते हैं, अपर कोर एंड लोअर कोर। ओके। आज हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट आर वोल्केनोस एंड व्हाट इज वोल्केनो एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ वोल्केनो।
So please guys, please pay attention to my word. What is volcano? Okay, a volcano is a place where gas or molten material like lava escape to the ground, है ना. वोल्केनो एक जगह है जहां पर गैसेस और जिसको लावा कहते हैं आप, मोल्टेन रॉक मटेरियल्स, वो क्या होता है, इरप्ट होता है, निकलता है. उस प्लेस को हम लोग वोल्केनो कह रहे हैं. और इसी वोल्केनो को हम लोग क्लासिफाई कर पाते हैं वेरियस टाइप्स में. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया देयर आर 5 टाइप्स ऑफ volcanoes. First one is sealed volcano, second one is composite volcano, third one is caldera, and third one and fourth one is flood basalt province, and fifth one is mid oceanic ridges volcano. इन आप ये देख पाएंगे, मैंने ये बताया था आपको कि जब आप मेंटल मेंटल कोर जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने बताया था कि एस्थेनोस्फेयर क्या होता है ना. तो एस्थेनोस्फेयर इज बेसिकली अ वीक लेयर ऑफ, आप कह सकते हैं मेंटल का ये एक वीक लेयर है जो कहाँ पर पाया जाता है, अपर मेंटल में. इट इज फ्रॉम वेयर द मॉल्टन रॉक मटेरियल फाइंड देयर वे टू सरफेस. ये एस्थेनोस्फेयर बताने का मतलब यही हुआ कि यही वो जगह है ना, इसी वीक एरिया के द्वारा जो ये मॉल्टन मटेरियल है जिसको आप मैग्मा कहते हैं, वो क्या होता है, बाहर आता है ना, सरफेस पर. अब क्या होता है कि कोई पूछेगा कि ये बताइए कि मैग्मा और लावा जो है दोनों तो एक ही चीज है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो बेसिकली द molten मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा, है ना. मेंटल पोर्शन में, अपर मेंटल पोर्शन में जो मोल्टन मटेरियल है उसको मैग्मा बोलते हैं, वहीं पर मैग्मा चेंबर पाया जाता है. वंस इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द क्रस्ट और इट रीचेज द सरफेस, इट इज रेफर टू लावा. और जब ये मतलब वेंट के थ्रू, यानी कि जो ओपनिंग होता है उसके थ्रू बाहर आ जाए, सरफेस पर आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको लावा कहते हैं, है ना. सरफेस पर अगर मैग्मा आ गया तो उसको लावा बोल रहे हैं, और मेंटल में अगर है मैग्मा चेंबर में तो उसको मैग्मा कहा जा रहा है. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस. नाउ कम टू द पॉइंट. व्हाट इज सील्ड वॉल्केनो? सील्ड वॉल्केनो इज बेसिकली सील्ड वॉल्केनो इज बेसिकली द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनो ऑन द अर्थ, है ना. जितने भी वॉल्केनो हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, सील्ड वॉल्केनो होता है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हवाईयन वॉल्केनो है. These volcanoes are mostly made up of basalt. For this reason, these volcanoes are not steep. और जब ये बेसाल्ट मैं कह रहा हूँ तो बेसाल्ट इज बेसिकली व्हाट, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड, है ना. वेरी फ्लूइड मतलब जब ये इरप्ट होता है, जब ये वेंट के ओपनिंग के थ्रू जो है बाहर आता है, तो ये रुकता नहीं है, ये बहता चला जाता है ना, लाइक अ सेमी सॉलिड मटेरियल के जैसा आपको ये दिखेगा. और क्या होता है, ये इरप्ट होता है एक, और इसके वजह से क्योंकि वेंट के थ्रू ये पूरा बह जाता है, तो ये इसके तीव्र ढाल जो है वो नहीं बना पाता. जैसा कि आप कंपोजिट वोल्केनो में देख पा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वहां पर स्टीप नहीं दिखेगा आपको, यानी कि तीव्र ढाल नहीं दिखेगा, है ना. तो दीज आर द थिंग्स which are related to sealed volcano. And one more thing is sealed volcano is basically bearing the basalt flow, है ना. sealed volcano basically bearing the basalt flow. और मैंने आपको बताया कि ये बेसाल्ट क्या होता है. बेसाल्ट एक तरीके का लावा है ना. बेसाल्ट रॉक भी होता है जब वो ठंडा हो जाए. तो बेसाल्ट इज बेसिकली क्या कह रहा हूं मैं, इट्स अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड, है ना. तो सील्ड वॉल्केनो के बारे में आपको ये सब बातें याद रखनी होगी. इट इज ऑल्सो वेरी एक्सप्लोसिव व्हेन वाटर गेट्स इनटू द वेंट, है ना. अगर वेंट जो है ये ओपनिंग जहां से ये जो बेसाल्ट फ्लूइड है ये बाहर आता है, वहां पर अगर किसी तरीके से पानी चला जाए तो ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, एक्सप्लोसिव हो जाता है ना. तो ये बात आप याद रखेंगे. सेकेंड वन इज कंपोजिट वॉल्केनो. Composite volcanoes are characterized by the eruption of cooler and more viscous lava than basalt, है ना. अब यहाँ पर दो चीज आप समझ पा रहे होंगे कि कूलर एंड मोर विस्कस.
है ना, ये तो ठंडी अवस्था में पाया जाएगा और बहुत ज्यादा विस्कस होगा। विस्कस मीन्स स्टिकी, कंसिस्टेंट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड, है ना, बहुत ज्यादा स्टिकी होगा और थोड़ा थिकी नेचर लिए होगा, यानी कि थोड़ा गाढ़ापन लिए होगा। और कैसा होगा, ठंडा होगा, है ना। सेकंड, आप इसी में सेकंड पॉइंट अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो दिस वॉल्केनो ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन, ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन along with lava, large quantity of pyroclastic material and ashes find their way to the ground. This material accumulates in vicinity of the vent opening, leading to the formation of layers, and this makes the mountains appear to composite volcano. कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये बाहर आते हैं वेंट के थ्रू, जब ये बाहर निकलते हैं ये मैग्मा, तो क्या होता है, दिस मेक्स अ माउंट अपीयर अ कंपोजिट वेल्केनो। क्योंकि ये इसका जो नेचर है कंपोजिट वेल्केनो, आप देख पा रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा ठंडा नेचर है इसका, है ना, कूल नेचर है। तो ये क्या होता है, ऊपर आते आते थोड़ा जम जाता है ना। और क्या होता है, ये आपको कैसा दिखेगा, माउंट अपीयर्स एज कंपोजिट, है ना, कंपोजिट के थ्रू, कंपोजिट की तरह आपको ये नजर आता है। सो इसीलिए इसका नाम क्या बोल रहे हैं आप, कंपोजिट वॉल्केनो। And next one is caldera. Caldera is basically are the most explosive of the earth volcano. अब ये आपसे पूछा जाए कि सबसे एक्सप्लोसिव वॉल्केनो अर्थ पे कौन सा पाया जाता है, तो आप कहेंगे काल्डेरा, है ना। दे आर यूजुअली एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स रेदर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पर कोई टॉल स्ट्रक्चर नहीं बनता है ना। और क्या होता है, दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स, है ना। आप देख भी पा रहे होंगे, ये जो आप फिगर देख पा रहे हो, तो यहाँ आप समझ भी पा रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा टॉल स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। दे कोलैप्स डिप्रेस, दीज कोलैप्स डिप्रेशन आर कॉल्ड काल्डेरा। ये जो कोलैप्स डिप्रेशन है, ये चारों ओर जो उठा हुआ आप देख रहे हो और बीच में जो डिप्रेशन है, इसी को क्या बोला जा रहा है, कॉल्डेरा। दिस देयर explosiveness indicates that the magma chamber supplying the lava is not only huge but also in close vicinity। और ये जो मैग्मा चेंबर से मैग्मा सप्लाई हो रहा है इस वॉल्केनो में, ये बहुत ही, मैग्मा चेंबर जो होता है यहाँ पर बहुत ही नजदीक होता है ना, और बहुत ही विशाल जो है स्वरूप लिए हुए होता है। so these are the things about caldera। and next one is flood basalt provinces, है ना। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस में आप देखेंगे कि दिस वॉल्केनोस आउटपोर हाईली फ्लूड लावा दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। आप देख पा रहे हैं हाईली फ्लूड है और ये डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा कवर करता है ना। दिस कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्लोज विथ सम फ्लो अटेनिंग थिकनेस टू मोर देन 50 मीटर। और ये जो फ्लो हो रहा है, ये जो लावा बह रहा है बाहर, इसका थिकनेस जो है लगभग कितना हो सकता है, 50 मीटर के आसपास हो सकता है ना। और ये लगभग 100 किलोमीटर का दायरा कवर कर सकते हैं, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको बताया जाए तो ये जो द डेक्कन ट्रैप फ्रॉम इंडिया प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेटू आर मच लार्जर फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, है ना। और ये जो दक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र प्लेटू है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस का। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो महाराष्ट्र प्लेटू है ये किस चीज का एग्जांपल है, आपसे अगर कोई पूछेगा सील्ड वॉल्केनो का, कंपोजिट वॉल्केनो का, काल्डेरा का या फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस का, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोस, है ना। मिड ओशनिक रिज वॉल्केनो, जब आप अटलांटिक महासागर को देखते हैं, है ना, ये जो बेसिकली वाटर दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और उसके ईस्ट में जब आप देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, अटलांटिक ओशन दिख रहा है। और थोड़ा ईस्ट जाएंगे तो क्या दिखेगा, ऊपर में यूरोप दिखेगा, नीचे क्या दिखेगा, अफ्रीका दिखेगा। यही बात है ना। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, बेसिकली दीज वोल्केनो अकर इन द ओशनिक एरिया
there is a system of mid-oceanic ridge more than 70,000 kilometer long that stretch through all the oceanic basin, है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि ये समंदर के नीचे पाए जाते हैं। ये जो वॉल्केनो होता है ये बेसिकली कहाँ दिखेगा आपको, अटलांटिक ओशन में नीचे जब कोई गोताखोर जाता है तो वो देख पाता है, ऑब्जर्व करने के लिए अगर कोई जाते हैं तो इस बात को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि यहाँ पर जो है ये कैसा है, ओशनिक रिज है ना। बीचों बीच जैसा आप देख पाते हैं कि समुद्र का जो तल है वो आपको ऊपर से समतल दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप नीचे जाएंगे तो वो सारे चीज आपको मिलेंगी, वो प्लेन मिलेगा, वो घाटी मिलेगा, देयर आर सेवरल माउंटेन्स, देयर आर सेवरल रिज, है ना, जो ओशन के अंदर दिखते हैं, है ना। So these are the things about volcano and the types of volcano. If you guys have still any doubt, you can ask me so that we can continue with the another topic. सर Yes. सर हम लोग जूनियर क्लास पढ़े थे कि वोल्केनो को प्रकार डोरमेंट वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, डेड वोल्केनो, ये किस प्रकार का वोल्केनो है? देखो आप पूछ रहे हैं कि सुसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, यही बात है ना। एक्टिव हाँ सर, नीचे क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ वोल्केनो वही सब डोरमेंट पढ़े थे। वॉल्केनो, है ना। हाँ आप नीचे क्लास में यही पढ़े थे, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा, वी आर स्टडिंग हियर फॉर कंपटीशन, है ना। और कंपटीशन जब ये बात आप पढ़ पा रहे होंगे तो ये हर एक एग्जाम के लिए है। आप एसएससी दे रहे हैं, जेपीएससी दे रहे हैं या फिर सीडीएस दे रहे हैं, तो इसमें हर एक एग्जाम में ये बात पाया जाएगा। आपसे वो सस्ता क्वेश्चन नहीं पूछेगा आज के डेट में कि एक्टिव वोल्केनो क्या होता है। तो एक्टिव वोल्केनो, दे आर दीज वोल्केनोज आर बेसिकली वैसा वोल्केनो जहाँ पर जो कुछ समय पहले एक्टिव रहा हो या अभी एक्टिव है ना। तो दीज आर एक्टिव वोल्केनो। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी, जो जिसमें वोल्केनो हो ही नहीं रहा है, जिसमें थोड़े थोड़े समय में होता है, अब जिसमें होने ही वाला नहीं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, है ना। आपको बेसिकली यही चीज पढ़ना है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। यस सर। और कोई डाउट है?